السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا سیدھا اور سچا یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اگر تم مسلمان بنے ہو تو پورے طریقے سے مسلمان بن جاؤ، اگر مسلمان بنے ہو تو پورے طریقے سے مسلمان بن جاؤ۔ اس کی فل ڈیفینیشن، فل ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ زندگی کس کے لیے دی گئی؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ شعر 100% بلکہ 1000% درست ہے، لیکن یہ شعر جب مارکیٹ میں آیا تو بہت سارے بدعقیدوں کو چڑ ہوئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سنی کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے زندگی دی گئی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ تو بہت سارے یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے، اس سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ مسلک کا مطلب عبادت تو ہوتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم خود اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ سن لو کہ مسلک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جا کر کے لغت تلاش کرو، مسلک کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مطلب راستہ۔ تو اعلیٰ یہی فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، مطلب مسلک اعلیٰ حضرت کے راستے پر قائم رہ کر کے عبادت کرو، حج و زکوٰۃ کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، اور بھی بہت سارے جتنے بھی کام ہیں وہ اس راستے پر چل کر کے کرو۔ تو راستہ دین سے الگ نہیں ہے، مسلک کا مطلب ہی راستہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرو، کبھی اس کی وضاحت کر دوں گا میں فل ویڈیو کے ساتھ۔ تو پھر فرماتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک، یہی ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا مشن، یہی اعلیٰ حضرت سرکار کا موقف ہے کہ انہیں جانا یعنی نبی کو جانا، نبی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہی اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک ہے، مشن ہے۔ اور ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، یعنی جو دیکھنا ہے کسی کو کہ اس مسلک کا کیا رویہ ہے، کیا اس مسلک کی باتیں ہیں، کیسا رویہ ہے، کیسا طریقہ ہے، کیسے طور طریقے کیا کرتے ہیں، کیسے رولز ہیں، کس کس کو فالو کرتے ہیں، کس کس کو نہیں کرتے، تو اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ اب اگر کسی کو ہمارے مسلک کو دیکھنا ہے، ہمارے مسلک کو پرکھنا ہے، تو وہ یہ روڈ چھاپ مولویوں کو اور کچھ نام نہاد مجاوروں کو نہ دیکھے، بلکہ آئے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تسلیم کو پڑھے اور پھر سمجھے کہ اس مسلک کی پاور کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ سرکار نے صاف طور پر واضح کر دیا نا میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ اب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل پیرا رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، یعنی یوں کہہ لو کہ فرض اعظم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جو لکھ دیا وہ اٹل ہے، 100% بلکہ 1000% درست ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کی تصنیف سے، اعلیٰ حضرت سرکار سے قول سے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن سے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک سے، ان کے موقف سے اگر کوئی ہٹا تو وہ کٹ گیا، وہ جائے بھاڑ میں جائے، مر جائے، ہمیں فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہمیں واضح طور پر ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار کا قول مل گیا ہے۔ اب اگر وہ اعلیٰ حضرت سرکار کی تصنیف سے کٹا ہے تو اب اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اب وہ چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، فلانا ڈمکانا جو بھی ہو، ہم نہیں ماننے والے، کیونکہ اگر ہم کسی کو پرکھیں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابوں سے پرکھیں گے۔ اگر کوئی کتابوں سے ہٹا ہے تو ہمارا اس سے کوئی وابستہ نہیں۔ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن پر ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو اعلیٰ حضرت سرکار کا سچا مبلغ ہے اس کی جوتیاں ہمارے سر پر، اور جو اعلیٰ حضرت سرکار سے کٹ گیا وہ ہماری جوتی کی نوک پر۔ اب جو اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے جہاں تک، کیونکہ اس سے میں نے بہت پہلے اس کا پروموشن کر دیا تھا، بتا دیا تھا، اور میں اس کو بنانے والا بھی نہیں تھا، نہ میں ان کو بناتا، نہ میں چاہتا ہوں کہ کسی سنی کو اپنے چینل پر اس طریقے سے لایا جائے اور پھر اس کو اس طریقے سے کرا جائے۔ میں نے ان کو بڑے پرسنل میں بھی میں نے ان سے بات کرنی چاہیے لیکن انہوں نے نہیں کی، کمنٹ میں تھوڑی بہت دیر بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے میرے سوالوں کے جواب بھی دینا بند کر دیے۔ تو بہت سارے ادبانہ لہجے میں نے ان سے بات کی، اور ایسے بھی نہیں، کوئی سنی صحیح العقیدہ کوئی بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بھی بہت آپ نے سن لیا کہ ہمارا الحمدللہ مسلک کیا ہے اور ہمارا ماننا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم اس سے باہر نہیں جاتے، اسی کے اندر رہ کر کے ہم اپنا بھائی بناتے ہیں، اسی کو اپنا دشمن بناتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ رب العزت کے لیے دوستی اور اللہ رب العزت کے لیے دشمنی ہے نا، ہمارے دین پر جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو دین سے کٹ گیا وہ ہمارا کیا، وہ اللہ رسول کا بھی دشمن ہو گیا، دین کا دشمن ہو گیا۔ اب میں اس کو بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے میرے اوپر ایک اتنا بھونڈا اور اتنا بہت برا اعتراض کیا ہے کہ اگر واقعی کوئی اگر سنی صحیح العقیدہ سنے گا تو اس کی روح لرز جائے گی کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اس سے پہلے ان جناب کی باتیں سن لیتے ہیں جنہوں نے ہم پر اعتراض کیے ہیں، تاکہ ہم اور آپ واضح طریقے سے جان سکیں کہ مسئلہ ہوا کیا تھا، ہے کہ نہیں۔ اور پھر میں نے بتا دیا تھا کہ صلح کلیت کیا ہے اور ایمان کیا ہے، صلح کلیت کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی آڑ لے کر کے جو ہے نا وہ صلح کلیت کو بڑھاوا دینا کیا ہے۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب کے حوالے سے الحمدللہ یہی بات کریں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مشن ہے کیا، اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں موقف کیا بتایا کہ اسی راستے پر چلنا،
وہ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हज़रत को सुन लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। जनाब इनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने नमाज रोजे के ताल्लुक से बात की, आला हज़रत के फतवा की रोशनी में मैंने बात की कि भाई सुन्नियों को आला हज़रत ने खुराफात से रोका है, उन खुराफात के ताल्लुक से मैंने बात की, तो इन्होंने मेरे लिए वीडियो बना दिया। मतलब ये इन्होंने मुझसे बोला कि ये कह रहे हैं कि मैंने जो है ना वो बात की आला हज़रत सरकार के फतवा की रोशनी में। मुझे आप एक बात आला हज़रत सरकार की सिर्फ एक इबारत ऐसी दिखा दो कि आला हज़रत सरकार ने यूं रद्द किया हो कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ये फाता, दुरूद, सलाम पढ़ना और नमाज के जो अलग चीज़ें जो मुस्तहबात में से हैं, है कि नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ना, फाता, दुरूद पढ़ना, उर्स करना, चादर चढ़ाना, मज़ारात पर हाज़िरी देना, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, एक इबारत से आला हज़रत सरकार की बता दो कि आला हज़रत सरकार ने ये कहा हो कि ये सब तुम्हारी चीज़ें बेकार हैं, ख़त्म हैं। बल्कि आला सरकार ने ये इस चीज़ का रद्द किया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आला सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि नमाज छोड़ करके हाजिरी जाते हो मज़ार पर, तो वो जिहालत है। अगर कोई ये बातें करता है, जैसी बातें ये कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि आला हज़रत सरकार की रोशनी में मैंने बात की है, तो आप आला हज़रत सरकार की रोशनी में फतवा रखिए। अगर रोशनी में आप बात कर रहे हैं तो आप पर ये कर्ज है फल क़यामत तक। और एक इबारत ऐसी ले आई हज़रत कि जिसमें आला हज़रत सरकार ने यूं कहकर के रद्द किया हो कि अगर नमाज छोड़ करके हाजिरी दोगे, नमाज छोड़ करके चादर चढ़ाने जाओगे, नमाज छोड़ करके फाता दुरूद करोगे, नमाज छोड़ करके उर्स में जाओगे, तो तुम्हारे उर्स में जाने का तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, हाजिरी देने का सवाब नहीं मिलेगा, फाता का सवाब नहीं मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन ये तुम्हारा झूठ है कि आला हज़रत सरकार की रोशनी में फतवा की रोशनी में बात की। ये आला हज़रत सरकार की फतवा की रोशनी में बात नहीं है, ये सुलह कुल्लियत को बढ़ावा देना है। ये वो बोली है जो देवबंदी बोलते हैं जनाब, ये वो बोली है जो वहाबी बोलते हैं, वो भी तो यही कहते हैं ना। फिर तुम्हें और उनमें क्या फर्क हुआ? वो भी तो यही कहते हैं कि नमाज छोड़ करके उर्स में जाते हो, नमाज छोड़ करके चादर चढ़ाते हो, नमाज छोड़ करके फाता देते हो, यही चीजें तो वो भी कहते हैं ना। बताओ कोई फर्क है कि नहीं? मैं कोई बात आज गलत नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको फतवा लगाऊंगा। एक चीज और मैं वाजे कर दूं, कई बार कर भी चुका हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं फतवा लगाता हूँ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी एक इल्जाम है। मैं फतवा लगाता नहीं, मैं तो फतवा दिखाता हूँ, सरकारी हालत का फतवा मैं खोल करके दिखाता हूँ, फतवा रज़विया शरीफ का हो या किसी दीगर किताब का हो, मैं फतवा दिखाता हूँ, लगाता नहीं। तो अगर मैं अभी भी कोई बात करूंगा तो वो मेरे ऊपर मत, मुझसे मत नाराज होना। आला हज़रत सरकार की जाकर के किताब खोल करके पढ़ना कि वाकई मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आप आकर के अपने अमल पर ये शर्मिंदा होना और इस काम को छोड़ देना। आज की बात ऐसी बातें करना छोड़ देना, वो बातें करना जो सुन्नियत को शोभा देती है, वरना सुन्नी की लिबादे में बैठ करके सुलह कुल्लियत को बढ़ावा मत देना हज़रत, है कि नहीं। तो आप जो कह रहे हैं ना फतवा आला हज़रत की रोशनी में मैंने बात की, आप पर ये कर्ज है कि आप दिखाओ कि ये फतवा कहाँ से आपने, किसकी रोशनी में, कौन से फतवे की रोशनी में बात की है। ये इन्होंने मुझसे बोला कि वहाबिया देवबंदिया का रद्द जो है आला हज़रत ने फर्ज़ आज़म। हाँ, तो मैंने थोड़ी ना बोला है, ये आला हज़रत सरकार ने लिखा है। करो कि मैंने बोला है, भाई मैंने नहीं बोला। आला हज़रत सरकार, मैंने पढ़ के सुना है कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं यूं यूं यूं। 21 नंबर देखना, जिल्द नंबर 21 में जाकर के फतवा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 में आला सरकार क्या फरमाते हैं पता लग जाएगा, अगर से पढ़ी हो अगर आपने दिया है। तो क्या ये फर्ज़ आज़म अदा नहीं हो रहा या फिर ये फर्ज आज़म अदा हो रहा है? मैंने कहा कि बदअकीदों का रद्द करना फर्ज आज़म आला हज़रत सरकार ने फरमाया, और ये कह रहे हैं क्या ये फर्ज आज़म अदा नहीं हो रहा? बताओ। खुराफातों का रद्द करो, अच्छी बात है, लेकिन खुराफातों का रद्द फर्ज आज़म नहीं हो सकता, सर पटक के मर जाओगे। लेकिन एक इबारत आला हज़रत सरकार की नहीं दिखा सकते कि आला हज़रत सरकार ने ये फरमाया हो कि खुराफात का रद्द करना फर्ज आज़म है, बल्कि आला हज़रत सरकार ने फरमाया बदअकीदों का रद्द करना फर्ज आज़म है, जो आपकी बस की नहीं है। तो आप सिर्फ सुलह कुल्लियत की बातें कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुलह कुल्ली हैं, ये मत समझ लेना कि मैं आपको सुलह कुल्लियत का फतवा लगा रहा हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं वो सरासर सुलह कुल्लियत की बातें हैं। ऐसी बातें सिर्फ सुलह कुल्ली कर सकता है। सुन्नी सही अकीदा ये गवारा नहीं करेगा कि वाबियों और देवबंदियों की बोली बोले, वो बोली बोले जो देवबंदी वाबियों के गुरु घंटाल बोल करके मर गए, वो बोली बोले जो हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर बोली गई। ऐसा सुन्नी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो बोली बोले जो बराहीन कातिया में की गई, वो बोली बोले जो तक़वियतुल ईमान में की गई, वो बोली बोले जो फतवा रशीदिया के अंदर की गई। ऐसा सुन्नी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही बातें करेगा जिसके अंदर सुलह कुल्लियत घुस चुकी है। तो अपने जरा ईमान का जायजा लेना और अपने जो अमल का थोड़ा सा जायजा लो कि आप जो बातें बोल रहे हो क्या वो वाकई फतवा आला हज़रत सरकार की रोशनी में है या आप सुलह कुल्लियत को बढ़ावा दे रहे हो। एक पर्टिकुलर बंदा, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मैं सिर्फ खुराफातों के रद्द पे काम कर रहा हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये ऐसा मान लो कि एक पर्टिकुलर बंदा कि जो खुराफातों के रद्द पे काम करे और बाकी सारे जो है ना वो रद्द वाबियां पर और बदअकीदों के रद्द पर काम करे, तो क्या मेरी सुन्नियत में फर्क आ गया? मैंने तो आपसे कहा ही नहीं। आप खामखा में ये जो है ना वो कार में बैठ करके खामखा में दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं बैठ करके कि क्या मेरी सुन्नियत खत्म हो गई, क्या मैं ये हो गया, कि मैं सुन्नी कुल्ली हो गया, कि मैं वाबी हो गया, कि देवबंदी हो गया। ये तो आप अपने आप से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? हमें क्या पता आप कौन है ना। अब भाई फतवा जो दिखाया जाता है या सुनाया जाता है या लगाया जाता है वो जाहिर को देख करके लगाया जाता है। तो हमें आपके जाहिर से ये लगा कि आप वो बोली बोले जो सुलह कुल्लियत की बोली है, आप वो बोली बोले जो वाबी देवबंदी बोलते थे। हमने तो नहीं कहा कि आप सुलह कुल्ली हैं। अगर हमने ये कहा हो कि जनाब आप सुलह कुल्ली हैं तब आप हमारा गिरबान पकड़िए। हमने तो ये कहा कि ये बातें सुलह कुल्लियों वाली हैं। आपने ये नहीं कहा कि बंदा सुलह कुल्ली है। आप खामखा में अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपकी जुबान से अपने लिए ये बात निकल रही है तो अपने ईमान का जायजा लो, कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो गया। अब आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा और खुराफातों के रद्द पे काम करे, तो आपको किसने कहा कि आप पर्टिकुलर होकर के और ये खुराफातों के रद्द पे काम करो? अभी देखो मैं आला हज़रत सरकार का एक फतवा आपको दिखाता हूँ और ये फतवा सुन करके जरा अपने गिरेबान में भी झांकना। देखिए ये किताब है मलफूजात आला हज़रत, इसके सफ़ा नंबर 434 पर क्या फरमाते हैं आला हज़रत सरकार। जरा आप कहते हैं ना पर्टिकुलर, जरा पर्टिकुलर भी बन करके देख लेते हैं। तो आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, जब फितने या बदमज़हबियाँ ज़ाहिर हों तो फर्ज है कि आलिम अपना इल्म ज़ाहिर करे। आलिम क्या करे? अपना इल्म ज़ाहिर करे। जब फितने और बदमज़हबियाँ ज़ाहिर हों तो इस पर अल्लाह और जो ऐसा ना करे, क्या अपने बदमज़हबों के खिलाफ अपने इल्म को ज़ाहिर ना करे, तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों और तमाम आदमियों की लानत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसका फर्ज कबूल करेगा ना नफिल कबूल करेगा।
तो आप बताओ पर्टिकुलर इस टाइम जो जरूरत है वो किस चीज के लिए जरूरत है? खुराफातों के रद्द के लिए। सारी खुराफातें जो है ना वो सुन्नियों के अंदर नजर आती हैं। अभी मैं आगे इसका भी फतवा सुनाऊंगा कि सुन्नियों की जो है ना वो जो छोटी मोटी गलतियां जो सिर्फ जो है ना जिसको करने से आदमी फासिक ही हो सकता है और वो ऑलरेडी फासिक ही होते हैं, तो कुफ्र तक तो नहीं पहुंचता, उसका भी फतवा रज़विया शरीफ के अंदर अभी मैं आपको हवाला देता हूँ। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, क्या फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम ऐसा ना करे, कोई मौलवी अगर अपने इल्म को जाहिर ना करे, तो उसकी ना फर्ज कबूल, ना उसकी सुन्नतें, नवाफिल, ना वाजिबात कुछ कबूल नहीं। अगर ऐसा ना करे, जब फितने और बदमज़हबियां जाहिर हों, तो आप मुझे बताओ ये दौर वो दौर है कि ऐसा कौन सा फितना है जो ना उठाओ? हर तरफ से फितना उठा हुआ है। वो जो अंडे से निकल नहीं पाते हैं ना, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो अंडे से निकले नहीं है और सोशल मीडिया पर आकर के बाकी जो बंदियों के छोटे छोटे चूजे वो हमारे भोले भाले सुन्नियों को गुमराह कर रहे हैं वो। और तुम सुन्नियों को ही रद्द करने पे तुले हो। तुम सुन्नियों को तुम्हें सिर्फ उर्स ही दिख रहा है, वो उर्स में खुराफातें ही दिख रही हैं। तुम्हें वो बातें दिख रही हैं कि नमाज छोड़ करके फाता क्यों दिला रहे हो, तुम्हें वो बातें दिख रही हैं कि नमाज छोड़ करके चादर क्यों चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती को सुलगा रहे हो, मोमबत्ती, अगरबत्ती, शक्करबत्ती, इन चीजों में उलझे हुए हो। और वो उधर क्या कर रहे हैं, वो घर घर जाकर के, अगर घर घर नहीं जा रहे हैं तो अभी अंडे से भी पूरे तरीके से नहीं निकले, लेकिन लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया उन्होंने। और तुम एक पर्टिकुलर इस पर बनेगी हो कि माशाल्लाह सुन्नियों की ही सिर्फ तुम्हें खुराफातें नजर आ रही। तो आला सरकार फरमाते हैं, अगर जो आलिम ऐसा मौलवी ऐसा ना करे और सिर्फ नमाज और रोजे पर ही बात करता रहे और फितनों और बदमज़हबों का रद्द ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ना उसके फर्ज कबूल करेगा, ना वाजिबात, ना नफिल, कुछ नहीं कबूल करेगा। जैसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई लगता है ना कि नमाज रोजे की बात ज्यादा कर रहा है, तो इनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सुल्ह कुल्लिया वहां भी हो गया। अरे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़अल्लाह। यही वजह है इनका ये जुमला मेरी वीडियो बनाने का, वरना मैं इन पर कुछ बात नहीं करता। बस मैंने इनको इसलिए कहा था कि हजरत को थोड़ा सा वो हो जाए, अफसोस हो जाए, एहसास हो जाए और पता लग जाए कि हम किस वे में जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कह रहे हैं हजरत कि इन जैसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई नमाज और रोजे की बात करे। आज मैं हम सबको गवाह बना करके, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मेरा कोई ऐसा नजरिया हो, वैसे तो नहीं था, अगर बिलफर्ज मान भी लो, अगर मेरा कोई ऐसा नजरिया हो, तो मैं तौबा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ अता फरमाए कि अगर मुझे नमाज से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह चिढ़ होती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा एक मोमिन पर जो है ना वो डालना, एक इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अगर मैं अपनी पर आ जाऊं तो बहुत कुछ हजरत से बात कर करके फेस टू फेस बात भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सुन्नियों को इस बात पर ये सब करने पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का कायल नहीं हूं कि सुन्नियत में टुकड़े टुकड़े हूं। लेकिन फिर भी जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि इन जैसे लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि कोई नमाज की बात करता है, कोई हज ज़कात की फराइज की बात करता है, तो ये कहते हैं कि वो वहाबी हो गया। तब कि मैंने तो वाज़ेह कर दिया, मैंने तो इनको ये भी नहीं कहा कि तुम सुलह कुल्ली हो गए। वहाबी तो बंदी करना तो बहुत दूर की बात, वो तो खुले काफिर है कि नहीं। मैंने उनकी बात तो बहुत दूर, मैंने उनसे तो कहा भी नहीं कि तुम वहाबी हो गए तो बंदी हो गए। फिर इतना बड़ा इल्जाम एक सुन्नी सही अकीदा पर डालना कहाँ का इंसाफ है? तुम खुराफातों का रद्द करने निकले हो और खुद गड्ढे में जा रहे हो, खुद जहन्नम के रास्ते में जा रहे हो। शर्म करो, अपना शर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म की शर्म कर लो। ये इतनी लंबी ऊंची टोपी लगाए हो, इसकी शर्म कर लो, है ना। सिर्फ गाड़ियों में बैठ करके वीडियो बनाना, गाड़ियों पर घूमना, ये कोई सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत का लिवादा ओढ़ करके सुलह कुल्लियत को जो तुम फैला रहे हो ना, ये अपने गिरेबान में झांक करके देखो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब जरा हम तो माज़अल्लाह तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हम जैसे लोगों को नमाज और रोजे की बात नहीं होती, हजम नहीं होती। अब हम जरा तुम्हारे जैसे लोगों को देख ही लेते हैं यार। वैसे तो नहीं देखते, लेकिन तुम्हारा ये जुमला जो है ना वो दिल पर असर किया है कि माज़अल्लाह हम नमाज से चलते हैं। मियाँ अगर कभी हमसे मिलोगे ना तो देखोगे घर घर जाकर के नमाज पढ़वाते हैं लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाकर के नमाज की दावत देते हैं। तुम्हारी तरह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बड़बड़ करते हैं, सिर्फ बड़ नहीं आंकते हम लोग। अब जरा हम तुम जैसे लोगों की जरा हालत देख लेते हैं कि क्या है। अरे भाई, सुन्नियत का पहला उसूल यही है कि सबसे पहले अगर बात की जाएगी तो जरूरियात दीन पे की जाएगी। लो ये है मुल्ला जी के इल्म का जो है ना वो लेवल, कि सुन्नियत का ये उसूल है कि अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले नमाज और रोजे पर बात की जाएगी। अब जरा हम देख लेते हैं कि आला हज़रत सरकार ने क्या बताया है कि पहले सुन्नियत का यही मामला है कि पहले इन बातों का बात की जाएगी, नमाज रोजे की बात की जाएगी, या पहले ईमान की बात की जाएगी। नमाज रोजे की बात की जाएगी या अकायद को पुख्ता किया जाएगा, नमाज रोजे की बात की जाएगी या दीगर चीजों की बात की जाएगी, या अहम फर्ज जो सबसे बड़ा फर्ज आजम है उसकी बात की जाएगी। ये सरकार आला हज़रत की किताब है तमहीद ईमान शरीफ, इसके सफ़ा नंबर 56 पर आला हज़रत सरकार कुरान करीम की एक आयत कोट करते हैं और फरमाते अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़रतून। तर्जुमा फरमाते हैं क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश ना होगी। अब फिर क्या कहते हैं, ये आयत तफसीर बयान करते हैं। ये आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो कलमा गोई और जुबानी इद्दाए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा ना होगा। हाँ हाँ सुनते हो, आजमाए जाओगे, आजमाइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे। हर शय की आजमाइश में यही देखा जाता है कि जो बातें उसकी हकीकी और वाकई होने में दरकार हैं वो उसमें है या नहीं। अभी आगे भी पढ़ के सुना रहा हूँ, यहाँ पे बता दो। आला सरकार फरमाते हैं कि हर चीज में ये देखा जाता है कि जो उसकी हकीकी चीज है, हकीकी उसके वाक़े होने में चीज है, वो उसके अंदर है कि नहीं है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो कि आप अपनी मस्जिद में किसी इमाम को रखते हो, तो आप देखते हो कि ये इमाम ऐसा है कि नहीं है, इसकी दाढ़ी मुकम्मल है कि नहीं है, ईमान मुकम्मल है कि नहीं है, ये इस काबिल है कि इसके पीछे नमाज हो जाएगी, इसका अकीदा पुख्ता है कि नहीं है, इसका नमाज इसकी जो कुरान है वो दुरुस्त है कि नहीं है, रुकू दुरुस्त है कि नहीं है, सजदा दुरुस्त है कि नहीं है। इतना इल्म जानता है कि अगर नमाज के अंदर कोई गलती हो जाए तो सजदा साहब कब होगा, कब नमाज दोहराई जाएगी, सारी चीजें हैं कि नहीं। तो यही को आला सरकार फरमाते हैं हर चीज के वाक़े होने, हकीकी वाक़े होने में ये चीजें आदमी देखता है कि ये जो इसके दरकार है वो इसके अंदर है कि नहीं है। तो आला सरकार आगे क्या फरमाते हैं,
ہاں وہ اس میں ہے یا نہیں. ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے جو آیت ابھی پڑھی, اور فرماتے ہیں جو حضرت کہہ رہا نا کہ پہلی بات کیا ہوگی, پہلے یہ باتیں ہوں گی, نماز روزے کی باتیں ہوں گی یا عقائد کی بات نہیں ہوگی, ان لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا, ان لوگوں کو یہ عزم نہیں ہوتا. تو کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں. اول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جان پر تقدیم. تو اس کی آزمائش کا یہ صحیح طریقہ ہے کہ تم جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم, کتنی ہی عقیدت, کتنی ہی دوستی, کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو, جیسے تمہارے باپ, تمہارے استاد, تمہارے پیر, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہارے احباب, تمہارے اصحاب, تمہارے مولوی, تمہارے حافظ, تمہارے مفتی, تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ, کسے باشد یعنی کسے باشد کوئی بھی, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں, اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت, ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے, فوراً ان سے الگ ہو جاؤ. اب آگے سنو, ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو, ان کی صورت, ان کے نام سے نفرت کھاؤ. اب اگر میں جو ہے نا وہ ابھی آگے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پہلی بات کہاں پر ہوگی, پہلی بات کس چیز کی ہوگی. ایک صفحہ پیچھے چلتے ہیں, ابھی میں نے صفحہ پڑھا 54 کا, یعنی ابھی میں نے صفحہ پڑھا ہے 56 کا, اب 2 صفحے پیچھے چلتے ہیں 53 پر. یہاں پر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ ظاہری تعظیم دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے, اور فرماتے ہیں پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو, عمر بھر عبادت الہی میں گزرے, سب بیکار مردود ہیں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے, اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, اگر ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں ہے, ان کے عاشقوں سے محبت نہیں ہے, اگر حضور کی تعظیم پورے جہان پر سب سے زیادہ نہیں ہے, تو لاکھ سجدے کرے, لاکھ نمازیں پڑھے, صبح و شام نمازیں پڑھتا رہے, مسلوں میں تسبیح پھیرتا رہے, اور فرماتے پوری زندگی اگر عبادت میں گزرے اور عشق مصطفیٰ سینے میں نہ ہو, تو یہ ساری کی ساری عبادتیں مردود ہیں. اب تم جو کہتے ہو نا کہ اعلیٰ حضرت, تم کہتے ہو کہ تم جیسے کوئی نمازیں ہضم نہیں ہوتی, نمازوں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی, تو اعلیٰ حضرت سرکار سے جا کر کے ملا جی پوچھو کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے نمازوں کو معاذ اللہ مردود کہہ دیا, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر یہی تمہارا اعتراض مجھ پر ہے تو اگر تو ہے ہمت, اگر تمہاری زبان اس قابل ہے, اگر کانپتی نہیں ہے, تو اعلیٰ حضرت سرکار پر یہ فتویٰ لگاؤ کہ اعلیٰ حضرت سرکار کو معاذ اللہ رب العالمین نمازوں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی, کہ انہوں نے جو ہے نا وہ نماز کو مردود کیوں لکھ دیا. ارے ذرا ہوش کی پیو ملا جی, ہوش کی. اب ذرا ہم پہلے دو ہمارے ٹاپک ہیں, دو کٹ ہیں اس کے, ایک جو ہے نا صلح کلیت اور ایک ایمان کیا ہے, پختہ ایمان کیا ہے. اب ایک ایمان کے لیے ایک حدیث شریف سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایمان کی پاور کیا ہے. مشکات شریف کتاب کتاب الایمان کے اندر جو ہے نا حدیث شریف 25 یعنی 25, تو کیا فرماتے ہیں, یہ حدیث شریف ہے, سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور پر چٹا سفید کپڑا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کلر کا کپڑا جو ہے نا زیب تن فرمایا تھا. تو فرماتے اور سو رہے تھے, یعنی آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے. کچھ دیر بعد پھر آیا تو آپ جاگ چکے تھے. فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر مر جائے مگر جنت میں جائے گا, یعنی جو لا الہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ زنا اور چوری کرے. اب یہاں پر لا الہ الا اللہ صرف وہ چیزیں نہیں ہے کہ صرف بندہ زبانی کہہ دے, اب وہ سارے لا الہ الا اللہ کے سارے اس پر عمل پیرا ہو, جیسے مسلک اعلیٰ حضرت والے الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ لوگ عمل پیرا ہیں. اگر اس حدیث کے جو لا الہ الا اللہ کے سچے مصداق دیکھنا ہے تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو دیکھو. فرماتے مر جائے مگر جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ زنا اور چوری کرے, کیا کرے, اگرچہ زنا کرے چوری کرے, مطلب یہ گناہ ہے, کفر نہیں ہے. یہاں پر ایمان دیکھیں, ایمان ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے. تو فرماتے ہیں اگرچہ زنا اور چوری کرے, فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کر لے, مطلب زنا اور چوری جو کرے گا تو اس کو سخت سزا ملے گی, لیکن کافر نہیں ہوگا, جہنم میں نہیں جائے گا, سزا پا کر کے حضور کی شفاعت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں جائے گا, اور اللہ اس کو معافی کرنے پر قادر ہے کیونکہ رحیم ہے وہ. تو چوری کر لے. میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کر لے, یعنی دوبارہ پوچھا تو پھر فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے. میں نے کہا اگرچہ زنا چوری کر لے, مطلب تیسری بار بھی پوچھا حضرت ابو ذر نے. تو اگر اگرچہ زنا چوری کرے, فرمایا اگرچہ زنا چوری کرے. میں 4 بار پوچھا, پھر کہا کہ اگر ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود, مطلب یہ کہ اگر حضرت ابو ذر ناک رگڑ دیتے یہ پوچھتے کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے اور وہ اس کا عقیدہ درست ہے, اگر وہ سچا مومن ہے, مسلمان ہے, تو مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت ابو ذر پوچھتے ناک رگڑ لیتے تب بھی حضور یہی فرماتے ہاں وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو کہتے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑ جائے. مجھے بتاؤ یہ ایمان کی پاور یہ کون بتائے گا؟ تمہیں سنیوں کے یہ خرافاتیں نظر آتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین, اور وہابی دیوبندیوں کی تمہاری زبان بھی نہ کھلے, جس کو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرض اعظم بتایا ہے. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا فرض اعظم لکھا کہاں پہ اعلیٰ حضرت سرکار نے, تمہیں صرف میری بات بتائی ہوئی اور بول دی ویڈیو میں. تمہیں تو یہ نہیں پتا اعلیٰ سرکار نے کہاں عقائد کے لیے کیا بیان کیا ہے. اب یہ حدیث شریف مشکات شریف کی ہے, لگاؤ اس پر فتویٰ کہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ ہے دم. تو کیا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ درست ہے تو آپ اس کو سمجھائیے, نہ کہ سوشل میڈیا پر اس کو ذلیل کریے.
सिर्फ सोशल मीडिया पर जाते हो, घर जा जाकर के बताओ कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। इमामत करते हो तो इमामत का मतलब क्या हुआ? इमाम का सिर्फ मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, या सिर्फ 5 टाइम की नमाज ही पढ़ेगा? यही सारी चीजें होती है इमाम की। और इमाम से कहो कि घर घर जाकर के नमाजी बनाए, है ना, लोगों को गुस्ताखाने रसूल से रोके। तो लेकिन ये नहीं होगा। वो सोशल मीडिया पर सिर्फ सुन्नियों को ऐसे बदनाम करो, क्योंकि फॉलोवर्स चाहिए ना, वाबियों के भी चाहिए, देवबंदियों के भी चाहिए। अभी मैं आगे गुफ्तगू करूंगा, अभी मैं धोती खोल देता हूँ बढ़िया करके। अब जो पर्टिकुलर बन रहे थे ना, अब आला हज़रत सरकार ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इसको भी वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि जो तुम पर्टिकुलर बने घूम रहे हो और सुन्नियों के पीछे पड़े हो, ये क्यों कर लिया? जाकर के बोसा क्यों दे दिया? मजार से 4 हाथ दूर क्यों नहीं? अब उसे बेचारे को क्या पता है कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं। वो तो मोहब्बत में जा रहा है। अगर वो उसने तुम्हारी तरह पढ़ाई की होती तो वो तुम्हारी तरह लोगों को कम से कम गुमराह तो नहीं करता ना, वो भी तुम्हारी तरह अच्छा रहता। अब उसको बेचारे को क्या पता है? यही सारी चीजें उसको डायरेक्ट फतवा लगाओगे तो अगर दरगाह पे जाना छोड़ दिया, फिर बुजुर्गाने दीन से दूर नहीं कर रहे तुम। अरे भाई, उसको बेचारे को क्या पता है कहाँ खड़े होना है, किस तरीके से जाना है? उसको प्यार से समझाइए कि इस तरीके से नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? और बोसा देना कि आला सरकार ने मुतलकन मना फरमाया। आला सरकार ने 2 बातें बयान की हैं, एक इश्क और एक अदब। अदब ये है कि 4 हाथ दूर खड़े रहो, और फिर बोसा देना हमारे बुजुर्गों ने साबित किया है भाई कि बोसा देना सालिहीन से साबित है। और सरकार आला ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी फरमाया कि असहाब अकाबिरीन से साबित है, अकाबिर साहबा से साबित है। तो ये कौन बताएगा? और अगर उन्हें चादर चढ़ा दी और अगर किसी तरीके से थोड़ी सी बेद भी हो भी गई तो उसको अगर इतना ही अदब का पास होता तो वो आलिम ही ना होता। जाहिल फिर कहलाता क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों से जाहिल का लक़ब उसे दिया हुआ है, उसे सुनता। तो अब फरमाइए जो पर्टिकुलर बने हुए हैं, तो आला सरकार फतावा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं, हाशा, इससे वो मुराद नहीं कि निरे ज़ाहिर दारों को मतलूब जिनकी नज़र सिर्फ आमाले जवारे पर मकसूर, ज़ाहिर अहकाम शरा से आरास्ता, जो है ना, मतलब आमाले जवारे ज़ाहिर अमाल, यही जो मतलब जो सुन्नी बेचारे भोले भाले सुन्नी जो है ना अपनी कम इल्मी के सबब कर लेते हैं। तो आला सरकार फरमाते हैं इनकी इसी पर नजर रहती है। शरा से आरास्ता और मासी से मुनज़्ज़ा कर लिया और मुत्तकी मुफला बन गए, मुत्तकी मुफलह बन गए। मतलब ये कि मुत्तकी बने घूम रहे हैं, है ना। बातिन क्या है पता नहीं, लेकिन ऊपर से खुद मुत्तकी बनकर के भोले भाले सुन्नियों पर फतवे ठोकते घूम रहे हैं। ये 4 हाथ दूर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसने जाकर के चूमा क्यों? आला हज़रत सरकार ने तो मना फरमाया, ये फरमाया, वो फरमाया, तो उसी को आला सरकार खामखा के मुत्तकी बने घूम रहे हैं। सूफी नहीं, कूफी बने घूम रहे हैं। ऊपर जीनत और अंदर निजासत, ऊपर से सजे और अंदर से पता नहीं क्या। फिर क्या ये बातिनी खबासतें ज़ाहिरी सलाह पर कायम रहने देंगी? हाशा, मामला पढ़ने दीजिए। कौन सी ना गुफ्तनी है कि ना कहेंगे, कौन सी ना करदनी है कि उठा रखेंगे। और फिर बदस्तूर साले अवाम की क्या गिनती? अवाम को तो छोड़ो, बेचारे वो तो अवाम ही है, आम ही हैं, वो तो आम फहम बंदे हैं, उनको क्या पता है क्या होता है। आवाम की क्या गिनती? आजकल बहुत उलमा ज़ाहिर अगर मुत्तकी हैं भी तो इसी किस्म के, किसी चीज़ का लिहाज नहीं, शरीयत की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ मौलवी करते रहें बस, तो सिर्फ वो ज़ाहिर मुत्तकी बने रहें। तो इसी किस्म के इल्ला मन शा अल्लाह व कलील माहुम, मगर जो अल्लाह ताला चाहे और वो बहुत थोड़े हैं। मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके अक्सरियत, मेजोरिटी इसी में आला सरकार फरमाते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा मुशर्रह करता, यानी तशरीह करता, एक्सप्लेन करता, लंबा करता और बढ़ाता चढ़ाता, मतलब इसका खुलासा करता। जो आला सरकार फरमाते हैं जो आजकल मुत्तकी बने घूम रहे हैं, इसको और मुशर्रह करता। मगर फरमाते मगर क्या फ़ायदा कि हक तल्ख होता है। आला सरकार मगर क्या फ़ायदा, मतलब ये कि इन जैसे लोगों को वो भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा? मानेंगे तो है नहीं, अपनी तुर्रमबाजी में रहेंगे। तो आला सरकार क्या फ़ायदा? हक तल्ख होता है, कड़वा होता है, इससे नफ़ा पाना और अपनी इस्लाह की तरफ आना तो दरकिनार। मतलब आला सरकार की फतवा सुन करके अपनी इस्लाह करना तो बहुत दूर की बात है, दरकिनार। बताने वाले के उल्टे दुश्मन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इनसे बताया, मैंने कहा हजरत जो है ना आला सरकार ने फर्ज आज़म जो बताया है, आप इन छोड़ करके सुन्नियों के पीछे पड़े हैं, तो ये हमारे ऊपर उल्टे इल्जाम लगाने लगे कि इन जैसे लोगों को नमाज की बातें हजम नहीं होती, तो उसी को आला सरकार फरमा रहे हैं। ये सब बता दिया आला सरकार ने, फरमाते हैं उसके दुश्मन हो जाते हैं। मगर इतना जरूर कहूँगा, मतलब आला सरकार फरमाते हैं छोड़ो कोई, मतलब ये कोई फायदा तो है नहीं, तल्ख होता है, लेकिन फरमाते हैं इतना जरूर कहूँगा कि 1000 उफ इस नामे इल्म पर, अफसोस है तुम्हारे ऐसे इल्म पर कि सिर्फ ढंडूरा पीट रहे हो ना नमाज और रोजे का, अफसोस है। आला सरकार फरमाते हैं तुम्हारे इल्म पर 1000 बार उफ इस नामे इल्म पर, सिर्फ नाम के इल्म पर, कि आजकल बहुत बेदीन मुर्तदीन अल्लाह और रसूल की, देखो आगे बात, तुम पर्टिकुलर बने बैठे रहो और आला सरकार के फतावा को पढ़ो ना, तो इसमें हमारी क्या गलती? तो आला सरकार फरमाते हैं कि दिए बहुत बेदीन मुर्तदीन अल्लाह और रसूल की जनाब में कैसी कैसी सख्त गालियां बकते, लिखते और छापते हैं, इनसे कान पर जू ना रहेंगे। आला सरकार फरमाते हैं ये सुनकर के तो तुम्हारे कानों में जू नहीं रखती है, इस पर तुम्हारे दिल पर कोई अफसोस नहीं होता है, कोई बात नहीं, जाने दो, खत्म करो। हाँ, लेकिन सुन्नियों के पीछे पड़े रहो, सुन्नियों ने ये गलत कर दिया, तुरंत फौरन वीडियो बन जाती है एक सुन्नी की आती। अभी मैं और तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगा लोगों को, इंशाल्लाह ताला ये तफसील थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी देखना, इसमें तुम्हारा फायदा होगा। तो आला सरकार फरमाते हैं आजकल बहुत जो है ना इन पर कहाँ गई वो गालियां बकते, लिखते और छापते हैं, इनसे कान पर जू ना देंगे। कहीं बेपरवाही, कहीं आराम ख्वाही, कहीं नेचरी तहजीब, कहीं तमा की तकरीब, कहीं मुलाकात का पास, कहीं इसका हरास यानी डर कि इन मुर्तदों का रद्द करें, मुसलमानों को इनका कुफ्र बताएं तो ये सर हो जाएंगे। अखबारों इश्तिहारों में हमारी मजम्मतें गाएंगे, 1000 झूठे बोतान लगाएंगे,
मतलब इस चीज का डर है ना कि अच्छी खासी इमेज बनी हुई है। अब लोग हक, अल्लाह सरकार ने फरमाया ना, हक तल्ख होता है, कड़वा होता है, बड़ा हार्ड होता है, हर बंदा इसको हजम नहीं कर पाता। जैसे कि तुम हजम नहीं कर पाए और तुमने हमारे ऊपर एक इल्जाम लगा दिया कि नमाज की बातें हजम नहीं होती। तो अल्लाह सरकार फरमाते इसीलिए नहीं करते हो तुम कि जब तुम बातें ऐसी बयान करोगे तो फिर तुमको जो है ना वो ऐसी बातें लोग तुम्हारे ऊपर तान करेंगे कि ये ऐसी बातें हमारे ऊपर भी करते लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज की कोई दिक्कत है नहीं, करते रहो। हक जो है वो हक बयानी होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, कल क़यामत तक, आखिरी सांस तक। तो इसी को आला सरकार फरमाते हैं, मजम्मतें गाएंगे, हजारों झूठे बोतान लगाएंगे, मतलब झूठी बातें बताएंगे, इल्जाम लगाएंगे जैसे इन्होंने लगाया। कौन अपनी आफियत तंग करे इन नापाक वजूह के बाइस वहाँ खामोशी, मतलब वहाँ खामोशी रहती है। हुजूर की गुस्ताखी करते रहे, अल्लाह रसूल की शान में गालियां लिखें, छापें, बल्कि छाप करके बेचें। हाँ, ये अपने माँ बाप के ऊपर जाओ जरा और देखो कोई तुम्हारी माँ को गाली दे दे, बाप को गाली दे दे, और सिर्फ गाली देना, लिखे किताबों में, प्रिंट करवाए, छपवाए और फिर बेचे, दीवारों में चिपकाए, पढ़वाए लोगों से और मिंबर रसूल पर बैठ करके तकरीरें करवाए। फिर अपने ईमान का जायजा लो, फिर तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी, क्या यही खामोशी इख्तियार करे रहोगे? तो इसी को आला सरकार फरमाते हैं कि वहां पर जो है ना उसके बाइस भी इन सारे इन नापाक वजूह के बाइस भी खामोशी, और खुद इनसे अमाल में खता बल्कि अकायद में गलती हो, इसे कोई बताए तो ना अब वो तहजीब, ना आराम तलबी, ना बेपरवाही, ना सलामत रवि, बल्कि जामे से बाहर होकर जिस तरह बने इसकी अदावत में गर्म जोशी, हक का जवाब ना बनाए तो इनाद व मकाबरा से काम लेना, हत्ता के किताबों की इबारतें घड़ लें, झूठे हवाले दिल से तराश लें कि कहीं अपनी ही बात बाला रहे, आवाम के सामने शेखी करकरी ना हो, या वो जो बाज वगैरह के जरिए से मिल रहता है। हक तलफी करोगे तो लोग तुम्हें बुलाएंगे नहीं, मिंबरों पर नहीं बैठने देंगे कि ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये तो कहते कि लड़ाई झगड़े की बातें, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कान पकड़ के ये बातें किया करो कि ये झगड़े की बातें हैं, सुम्मा माज़अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म ने जो है ना वो ये सारी जो इश्क रसूल में जितनी गर्दनें उड़ाई वो इश्क रसूल में उड़ाई, ये झगड़े की बातें थी। हज़रत हैदर करार मौलाए कायनात ने जो काम किया वो झगड़े का था। सब कुछ छोड़ो, हमारे आला हज़रत को ले लो कि माज़अल्लाह आला सरकार ने जो काम किया कुफ्र का फतवा लगा करके, है ना, उम्मत कितने टुकड़ों में बढ़ गई, क्या ये झगड़े का काम था? ना ना, ये इश्क रसूल था, इश्क रसूल भाड़ में जाए। एक क्या आला सरकार ने फरमाया ना, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ना बस एक जहां, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ये जहान के टुकड़े होते हैं तो हो जाएं, लोग जहन्नम में जाएं, मर जाएं, हुजूर का इश्क बयान होता है, होता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो क्या आला सरकार का फरमाते हैं कि जो अपनी बात बाला रहे, अवाम के सामने शेखी करकरी ना हो, वो बाज वगैरह के जरिए से जो मिल रहता है उसमें खंडत न पड़े, यानी वो जो नजराने हैं वो कम ना हो जाए। क्या इसी का नाम तकवा है? हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदगोइयों के मुकाबिल वो ख्वाब खरगोश और अपने नफ्स की बेजा हिमायत में ये जोश व खरगोश। तो ये कहता है कि अल्लाह रसूल की अजमत से अपने नफ्स की अजमत दिल में सिवा है। अब इसे क्या कहिए सिवा इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।